الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس میں ہمیں آج سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر اپنے گھر جمع فرمایا. محترم بزرگ اور دوستو، اس دنیا کا یہ دستور ہے کہ جہاں تک حق پہنچتا ہے باطل بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے. حق اور باطل، خیر اور شر، ہدایت اور ضلالت ہمیشہ ٹکراتے ہی رہتے ہیں، ان کا آمنا سامنا ہی ہوتا ہے. جو شخص باطل کا مقابلہ نہ کر سکے اس کو حق پر ٹھہرنے کا اختیار بھی نہیں ہوتا. حق پر وہی شخص ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے جس کو باطل کے سازشوں کا اچھی طرح سے علم ہو اور باطل کے سازشوں کے مقابل میں کون سا قدم کب کیسا اٹھانا ہے یہ جانتا ہو. وہی شخص ہمیشہ ہدایت پر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایک بہت بڑے باطل سے ڈرایا اور یہ نشاندہی فرمائی ہے کہ ایمان والوں کا لوگوں میں اگر کوئی خطرناک دشمن ہے تو وہ یہودی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صرف کہہ کر نہیں چھوڑا، قرآن کریم میں تو بیان کر دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً. ایمان والوں کا سب سے خطرناک شدید دشمن کون ہے؟
آمنوا اليہود لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے، وہ تمہیں ایمان پر ٹھہرنے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ تمہارے ایمان پر حملہ کرتا ہی رہتا ہے، تمہیں بے ایمان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک نشاندہی کر دی، اور ہر نماز میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھہر کر اس جماعت سے، اس گروہ سے پناہ مانگتی ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی آخری آیت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلا، ان کا راستہ عطا فرما، اور جن پر تیرا غضب اترا اور جو لوگ ضالین ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے راستے سے بچا۔ یہ دعا ہم خود نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ نے ہم کو سکھایا ہے، اور ہر نمازی کے لیے، چاہے وہ نفل نماز پڑھے چاہے وہ فرض پڑھے، ہر نمازی ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہودیوں کی چال سے بچا، ان کے فتنوں سے بچا۔ کیوں؟ کیا ہوتا کیا ہے؟ وہ کرتے یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا سودا کر جاتے۔ اب مسلمان کو معلوم ہی نہیں، ہم تو اپنا دشمن صرف اسی کو سمجھا جس نے ہماری پراپرٹی جذبہ لی ہو، جو ہمیں کہیں دعوت میں نہیں بلایا، جس نے ہمیں کوئی عزت نہیں دی ہو۔ ہمارے پاس دشمنوں کے ایک الگ الگ انداز ہے۔ یہ جتنے ہمارے معاشرے میں جائیدادوں کی وجہ سے، معاشرت کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے عزت نہ دینے اور دینے کے اعتبار سے جو دشمنیاں ہیں، یہ دشمنیاں قبر کے گڑھے پر ختم ہو جائے گی۔ چاہے کتنی بڑی بھی دشمنی ہو، قبر کے گڑھے کے پاس جانے کے بعد مزید یہ دشمن زندہ رہ کے بھی کیا کرے گا؟ مرنے والا تو نہیں کر سکتا، مگر جو زندہ ہے وہ اس پر دشمنی کیا کرے گا؟ دونوں طرف سے دشمنی ختم ہے۔ اور یہ جو یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اس قبر میں جانے کے بعد سے اس کی تباہی شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا کر کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم جب بھی نماز میں آتے ہو، نماز کثرت سے کی جانے والی عبادت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل کر دیا اور بتلا دیا کہ ہر رکعت میں تم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں اس جماعت سے، اس باطل فرقے سے ہماری حفاظت فرما۔ مغضوب کہتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترا، اللہ کا غصہ اور عذاب اترا نہیں بلکہ ہمیشہ سے ان پر اللہ کا عذاب ہے، ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہے، اور جو ان کے چال کو اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے یہودیوں کے ساتھ۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی، یہ صلاحیت دی، وہ لوگ یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور تن من دھن ہر اعتبار سے جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اب دیگر مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے یہودیوں کے ساتھ ایک جنگ بپا ہے۔ ایک جنگ تو سامنے والے کو تہس نہس کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے ایک جنگ ہوتی ہے۔ ایک جنگ وہ ہے کہ سامنے والے کے، اس دشمن کے سامنے اپنے ہتھیار پھینکنا نہیں، ہتھیار ڈالنا نہیں، ہتھیار پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ایک جنگ وہ ہے کہ ان کے چال کو اختیار کر دے۔ ایک جنگ یہودی سے ہے اور ایک جنگ یہودیت سے ہے۔ یہودی سے تو جنگ کر رہی ہے ایران، یہ بڑے زمانے تک مسلمانوں پر وہ حملہ کر رہے تھے، فلسطینیوں کو ستا رہے تھے، آج وہ نوبت ان پر آ گئی۔ ہم بارہا بیانوں میں بھی کہہ رہے تھے، اکثر علماء بتا رہے تھے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت نہیں دیتا، ظالم کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور نہیں رکھتا۔ ایک وقت آتا ہے جب اس کے ظلم کا خاتمہ ہوتا، اس کے ظلم کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے۔ آج اسرائیل اسی موڑ پر ہے، لیکن عام دیگر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ تو مسلمان لڑ رہے ہیں، یہودیوں سے جنگ کر رہے ہیں، مگر ہر مسلمان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ ہمیشہ کے لیے لازم کر دیا، وہ یہودی سے نہ صحیح، یہودیت سے ضرور ہے۔ یہودی کیا ہے؟ یہودی تو اسرائیل میں بسنے والے ہیں، مگر یہودیت کیا ہے؟ آج ہر گھر میں، ہر انسان کے دل میں یہودیت پہنچ چکی ہے۔ یہودیت کیا ہے؟ یہودی ایک
شخص کا نام ہے، ایک انسان کا نام ہے، مگر یہودیت چند نظریات کا نام ہے، چند عادات اور اوصاف کا نام ہے۔ وہ اوصاف انہوں نے مسلمانوں تک ایسے پہنچا دیے کہ کوئی مسلمان شاید ہی آج محفوظ ہوگا یہودیت کے اثرات سے۔ آج جو لباس مسلمان پہن رہا ہے یہ کس کا لباس ہے؟ مسلمان جو زندگی کا شیڈیول بنایا ہوا ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ مسلمان جو نوکریوں کے پیچھے، جو دنیا کے پیچھے چل رہا ہے، یہ نظریہ کس نے دیا؟ یہ صرف یہودیوں نے دیا۔ آج جتنے ہمارے ہاتھ میں فون ہیں، ٹی وی کے صورت میں، سیریلز کے صورت میں، فلموں کے صورت میں، اس کو بنایا کون ہے؟ سب سے بڑی تباہی جو آج مسلمانوں میں اور انسانوں میں ہے، انسانوں کو، انسان کے ذہن کو کیسا بدلنا ہے اس کا فیصلہ کرنا، اور یہ خیال انسان کے ذہن کو پہنچانے کے لیے اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے فلم، سینما یا سیریل، ڈرامے وغیرہ۔ اس کا ایجاد کرنے والے یہودی تھے۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو، ان کے نسلوں کو تباہ کر دیا جائے، ان کے ذہن و فکر سے ایمان کے جذبے ہٹا دیا جائے، ان کے اندر سے یہ نکال دیا جائے کہ مسلمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ یہودیوں کی ساری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے زندگیوں کو سنت رسول سے نکال دیا جائے، ان کے اندر وہ آقا دو جہاں کے انداز کو نکال دیا جائے اور زندگی گزارنے کے نئے انداز ان کو بتا دیا جائے۔ آج نیا کوئی ماڈل بتانا ہے ڈریس کا تو اس کو کسی سنیما میں لا دیا جائے تو نوجوانوں کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس دور کا یہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے۔ ایک ایسا پلیٹ فارم انہوں نے بنا لیا کہ لوگ لباس کے اعتبار سے ہو، گاڑیوں کے اعتبار سے ہو، گھروں کے اعتبار سے، بچہ ہے وہ اپنی ماں کو نام سے بلا رہا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھئی ماں کو نام سے بلا رہا ہے، بھئی کیا نے کہا؟ تو پھر انہوں نے پوچھا، بچے نے کہا کہ میں ایک فلم میں دیکھا ہوں اس میں ہیرو جو ہے، بیٹا ہے، اپنے ماں کو نام سے پکارتا ہے، باپ کو نام سے پکارتا ہے۔ بھئی یہ کلچر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ کلچر جا سکتا ہے، شوہر کو نام سے بلایا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس تہذیب پر لعنت بھیجے۔ ماں کو آواز سے پکارنا جہاں شریعت منع، جہاں روکتی ہے، وہاں یہ ذہن دیا جا رہا ہے یہودی چالوں کے ذریعے سے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں ارے ماں کو نام سے بھی تم بلا سکتے ہو، اب ادب کہاں رہا؟ اب یہ بچہ جو ماں کو نام سے بھی بلاتا ہے، باپ کو نام سے بھی بلا سکتا ہے، یہ اس باپ کو مارنے کے لیے پیچھے کب ہٹے گا؟ باپ کو تکلیف دینے کے لیے کب پیچھے ہٹے گا؟ یہ بچہ، یہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت تو دور کی بات ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ ابھی نئے نئے اولڈ ایج ہوم بنائے گئے ہیں، یہ نظریہ کہاں سے ملا؟ یہ بھی یہاں سے ملا۔ مسلمان کے لیے تو اسلام یہ بتا رہا ہے ماں باپ جتنے بھی بوڑھے ہو جائے ان کی خدمت میں تمہارے لیے جنت ہے، تم اپنے نوکریوں کو، کاروبار کو چھوڑ دو، دنیا و ما فیہا کے ہر شے کو قربان کر دو ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ ارے خدمت تو دور کی بات، باپ کے نگاہ کو، باپ کو کس نظر سے دیکھنا اولاد کو نہیں معلوم۔ یہ کہاں سے درد ملا؟ اب ماں باپ رو رہے ہیں، پھر ان کے اندر یہودیت کو، یہ بتا رہا ہوں کہ یہودیت کیا ہوتی ہے۔ یہودیت یہ ہے کہ مسلمان کے ذہن و فکر سے، اس کی زندگی سے اسوہ محمد مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، ایک نیا سٹائل دیا جائے۔ آج جو ہر مسلمان کا یہ زندگی کا مقصد ہے کہ میں کل سے آج تک کتنا زیادہ کمایا ہوں، میری پراپرٹی کتنی ترقی پر ہے۔ پہلے اپنی زندگی بناؤ خوشگوار زندگی۔ اب خوشگوار زندگی، اچھی زندگی، بہترین لائف سٹائل کا پروگرامنگ کیا ہے؟ اس کا پروگرامنگ یہ ہے کہ تم اپنا خاص گھر بناؤ، اچھی گاڑی رکھو، اور تم اپنے بینک بیلنس رکھو، جائیداد رکھو، گھر میں بہتر سے بہتر سہولت کی چیزیں رکھو، اب تم عزت دار آدمی ہو۔ یہ نظریہ عزت دار آدمی ہونے کا یہ پروگرامنگ کس نے مسلمان کو سکھایا؟ اگر گاڑی کا ہو جانا، خاص مکان کا ہونا، گھر میں اچھے اچھے لائٹ ہونا، گھر میں اچھے اچھے ڈیکوریشن کیے ہوئے کمرے ہونا، اور گھر میں ایئر کنڈیشنر سسٹم ہونا، اگر یہ کامیاب انسان کی دلیل اگر ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب انسان محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کے گھر کا جائزہ لے، آپ کے مکان کا جائزہ لے۔ آپ کا مکان اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں آپ آرام فرماتے،
اور آپ کے बाजू कोई زوجہ आपकी होती और आप रात में तहज्जुद के लिए नमाज के लिए बेदार होते, तो नमाज पढ़ने के लिए हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैं अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर कर लेती थी। यानी घर इतना भी, कमरा इतना भी लंबा नहीं था कि एक आदमी आगे सो रहा है तो पीछे से कोई शख्स ठहर कर नमाज पढ़ सकता हो। इतना छोटा सा कमरा था। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आप तशरीफ लाए दुनिया में, उस वक्त आपके उस हुजरे में, जिस कमरे में आपकी विलादत हुई, कोई चराग तक नहीं था। और जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होने वाले थे, आपका इंतकाल होने वाला था, उस वक्त भी उस कमरे में चराग जलाने के लिए 10 ग्राम तेल भी नहीं था। ये नहीं है कि हुजूर पाक सासम कोई मजबूर नौज़बिल्लाह गुर्बत वाले गरीब इंसान थे, कायनात के सरदार है। अगर एक हुक्म दे देते, आपके एक इशारे पर आप पानी में उंगलियां रख देते, तो इतना पानी अल्लाह तबारक व तआला बहा दिया कि 500 का लश्कर सैराब हो गया। 500 सहाबा का लश्कर पानी पी भी लिया और उन्होंने गुस्ल भी किया और अपने मशकीज़े बंद भी लिए। सलाहियत और इख्तियार तो ये है, जहां इशारा फरमा देते वहां पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों को बिखेर देता। और आपका हाल ये है, इतने मुख्तसर से हुजरे में जिंदगी गुजार दिए, वक्त आखिर है, आप दुनिया से जा रहे हैं और घर में जलाने के लिए तेल नहीं है। अपनी उम्मत को ये दर्द दे रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत, कामयाब इंसान मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। अगर कामयाबी तुम्हारे सहूलतों में है, कामयाबी पुख्ता घरों में है, कामयाबी सवारियों में है, तो अल्लाह तबारक व तआला कैसर और किस्रा के मोहल्लात मदीने में उतार देता था, दौलत के अंबार मेरे कदमों में लगा देता था। मेरे सामने दुनिया भर के खूबसूरत से खूबसूरत नस्ली घोड़े पेश कर दिए जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फकीराना जिंदगी देकर बताया कि मुसलमान की कामयाबी उसके पेशानी में होती है, मुसलमान की कामयाबी उसके ईमान में है, मुसलमान की कामयाबी उसके अखलाक और किरदार में है। मुसलमान कामयाब वो होता है जिसके जरिए से मखलूक खुदा को नफा पहुंचे, फायदा मंद हो जाए, ये शख्स कामयाब होता है। आज अच्छी सहूलतें होना और अच्छा रॉयल आदमी बनने का मतलब यह है कि मैं अच्छा बनूं, लोगों को दिखने में अच्छा ब्रांडेड आइटम इस्तेमाल करूं। भाई ब्रांडेड चीज इस्तेमाल किए, खुद का ब्रांडेड बनेंगे। एक है ब्रांडेड वॉच पहनना, एक है ब्रांडेड कपड़ा पहनना। ब्रांड बन के कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज इस्तेमाल करना, ये यहूदियत है। और मोहम्मदियत ये है कि तुम खुद अपने जात में, अपने अखलाक से ब्रांडेड बन जाओ। तुम खुद अपने औसाफ को ये बताओ कि तुम्हें देखने वाला समझ जाए कि जिंदगी को ऐसी गुजारे। फायदा क्या हुआ? इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के जो हमारे बच्चे दीवाने हैं, उनके जो फैन बनकर अपने आप को फख्रमंद समझ रहे हैं, उनके अंदर कौन से अखलाक है, उनके अंदर कौन से औसाफ है? कभी उसके साथ बैठ कर देखा हमारा बच्चा कि ये झूठ कितना बोलता है और ये कितना सच्चा है, ये कितना धोखेबाज है और कितना खाइन है? कभी देखा है? वो चीज जो थोड़ी देर के खुद समझ रहे हैं, मालूम भी है कि ये एक्टिंग कर रहा है और उसी के हम दीवाने हैं। और एक जमाना था, लोग होनहार और मकाम वाले मेहनती लोगों के पास अपने आप को बिठाना फख्र समझते थे। आज खेल कूद करने वाले, खेलने वाले, अरे नाचने वालियां, जिनके जानी होने में 1% भी कोई शक नहीं है। आज बताइए, जितनी ये जान नाचने वालियां हैं और फिल्मों में नाचती हैं, हीरोइन है, कोई एक उठकर बताए मुसलमान कि क्या इनमें से कोई पाक दामन हो सकते हैं? ये सारी दुनिया को अपना जिस्म बताने वाले, अपने जिस्म के हुस्न को झलकाने वाले, क्या अपने जात में पाकीज़ा है? ये अपने पाकीज़गी को बचाते हुए क्या जिंदगी गुजार सकते हैं? अरे छुपने वाले, पर्दा पोश रहने वाले भी आज महफूज नहीं है। फित्नों का ये दौर है, जो पर्दे पर आ गए, पर्दे में रहने वाले महफूज नहीं है, तो पर्दे पे आने वाले कैसे महफूज रखेंगे? ये आज मुसलमानों के अंदर यहूदियत आ गई। अपना लिबास कहां से बदला? पलट कर हम देखते क्यों नहीं कि 1400 साल पहले मुसलमान कैसा था, मुसलमान की जिंदगी कैसे होती थी ना। इसीलिए हाल ये हो गया, ना मुसलमानों के हाथों में असर रहा। हर शख्स जिसको देखो परेशानी, हर जिसको पे हाथ रखो मौलाना ये परेशानी है, बीमार भी हूं, घर के मुसीबतें अलग है, कोई औलाद न होने पर परेशान है, कोई औलाद होने की वजह से परेशानी में है, कोई कारोबार न होने की वजह से परेशानी में है, कोई कारोबार ज्यादा होकर उसके नौकर बेईमान खाइन होने की वजह से परेशानी में है, किसी भी एतबार से परेशान है।
मुसलमान अल्लाह की बारगाह से गैबी नुसरत लेने से महफूज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मोहम्मदियत निकल गई, इसके अंदर रूह मोहम्मद जो होनी थी, इसको चारों तरफ में आकाए दो जहां नजर आना छोड़ दिए तो हाल क्या हो गया? इसकी आवाज आसमान के दरवाजे को टकराती भी नहीं, उससे पहले ही खत्म हो जाती है। मुसलमान तो वो थे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर सजदे में रखता तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आ जाती। क्या हो गए वो हाथ? आज हमारे निगाहों पर कंट्रोल यहूदी का है। नहीं, निगाह किसकी पाक है? आज बैठो तन्हाई में, जिसको चाहे फोन खोलो देखो, जिस औरत को देखना चाहते हो देखो, जिस हिस्से को देखना चाहते हो, जिस अंदाज में देखना चाहते हो। ये हालत देखे, ईमान बाकी है कि ईमान वाले की आंख हो सकती है, कान किसके महफूज है? वो मुसलमान जो कुरान से लज्जत लेता था, यहूदियों ने देखा इसके कानों में अगर कुरान की लज्जत महफूज हो, ये अभी कुरान से मजा लेने वाला बना रहेगा तो फिर ये दुनिया पर हम इस पर राज नहीं कर सकते। निकालो इसके कानों से कुरानी लज्जतों को, निकालो इसके आंखों से अल्लाह के कुदरत के जलवों को। इधर निगाहों पर हमला कर दिया, बेहयाई को सामने पेश कर दिया, इधर कानों पर हमला किया और गानों के हवाले कर दिया। आज मजा आना है थोड़ी देर के लिए, सुकून लेना है तो क्या करते हैं हम? गाना सुनते हैं। मुसलमान की दुकान है और गाने की आवाज आ रही है, मुसलमान के घर में शादी है, जरा गौर किया जाए तो गानों की आवाज आ रही है। लो भाई, शादी निकाह क्या है? सुन्नत है ना। हर एक निकाह के काट पे क्या लिख रहा है? अन निकाह मिन सुन्नती। रुखाते ही रुखे पे लिखा हुआ है निकाह, अन निकाह मिन सुन्नती का मतलब निकाह मेरी सुन्नत है, वो तो इरशाद है। और घर में निकाह हो रहा है, शादी है, और गाने यहूदियों के आ रहे हैं। क्या है ये? क्या है ये? इतनी तो मिलावट कोई ऐसा शख्स हो सकता है, कोई ऐसा शख्स दुनिया में हो सकता है, एक तरफ तो दूध तो खालिस है और उसका पेशाब मिला हुआ है, खाना तो सही है मगर उसमें गिलाहत मिली हुई है। कौन पसंद करेगा ऐसी चीज को? निकाह सुन्नत रसूल है, जिस घर में निकाह हो रहा है उसी घर से कंजरियों के गानों के आवाजें आ रही है। ये मुसलमान है, ये सुन्नत रसूल का नाम ले रहा है, इसके घर से सुन्नत रसूल की बू आनी थी या यहूदियत की बू आ रही है। और वो जब वो जो शादी का वीडियो बना है, सामने तो वीडियो चल रहा है और पीछे भी गाने हैं और गाने चल रहे हैं। वो जो दूल्हा निकलते ही उसके मुताबिक का एक गाना, वो जाते ही एक गाना, दुल्हन के पास एक गाना, और पूरे गाने पेश कर दिए। और ये कैसेट कौन सी है जनाब? ये कैसेट जो है ये निकाह की कैसेट है, निकाह सुन्नत है। बताओ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने को निकाह में रखा था? लेकिन निकाह क्या है? निकाह सुन्नत रसूल है। सुन्नत रसूल पाकीज़ा चीज है। कसम खुदा की, जहां सुन्नत रसूल होती है अल्लाह तबारक व तआला जमीन के उस खित्ते से लेकर आसमान तक अर्शे मुअल्ला तक फरिश्तों की कतार बना देता है। और इस निकाह को कर रहे हैं और गानों के जरिए से उसका आगाज हो रहा है। अब बताइए कौन से फरिश्ते आएंगे? इधर सुन्नत रसूल है मगर सुन्नत रसूल को पीछे फेंक दिया और यहूदियत को गानों की सूरत में सामने कर दिया। अब बरकतें कहां से आएगी? निकाहों के चंद दिन हुए, गड़बड़ शुरू हुई, भाई ऐसे है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब ये गड़बड़ों के झगड़ों का पूरी वजह या तो उस रिश्ते को लगाने वाले पे डाल देते, भाई इन्होंने रिश्ता लगाए थे, लड़ते ये लोग, भाई जो लोग रिश्ता लगाए हैं उसको शुक्रिया बोलना था। रिश्ते में कोई खलल आ गया तो उस पे इल्जाम लगाते, ये रिश्ता लगाए थे, अगर ये ना होते, ये रिश्ता पेश नहीं कर सकते, उस दिन ऐसा वाकया पेश ना आता तो अच्छा था, इस रिश्ते से बच जाते थे। उसके बताने में क्या गलती है? वो नहीं बताता तो कोई और बताता था। गलती कहां हुई समझने के लिए मुसलमान को सलाहियत नहीं है। गलती कहां हुई? मेरे जिंदगी की बेबरकती की वजह क्या है? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। लिख कर रख ले, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जुबान से कहलवा दिया, हमने जिल्लत को मुकद्दर कर दिया उसके। कौन? जिसने आपने जिंदगी से सुन्नत रसूल को निकाला। अब उसको दुनिया का कितना बड़ा आमिर भी हो, कितना पैसा भी हो, ओहदा भी हो, उसको इज्जत दिला नहीं सकता। मैं 2-4 चीजें गिनकर बताया हूं। हमारे बच्चे स्कूल जाते कौन सा यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं? वहां क्या कर रहे हैं? वहां कोई पूजा भी होता है, कोई गैर मुस्लिमों का कोई त्योहार भी होता है। ऐसे ऐसे बच्चों को हमने देखा है, माँ खुद तैयार करके जा रही है
वो गैर मुस्लिमों के त्योहार के लिबास पहन कर जा रहा है। और कौन है? नाम अब्दुल गफूर है, अब्दुल शकूर है, मुसलमान है। भाई मुसलमान नाम रख लेने से हुआ? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर का नाम इस्लाम से पहले भी उमर था, इस्लाम लाने के बाद भी उमर था। उस्मान का नाम इस्लाम से पहले भी उस्मान था, इस्लाम लाने के बाद भी उस्मान ही हुआ। हजरत बिलाल इस्लाम कबूल करने से पहले, आकाए दो जहां के इश्क में मर मिट जाने से पहले भी आपका नाम बिलाल ही था। बात तो कोई बदला नहीं। बदला तो क्या बदला? उनकी शनाख्त उनके नामों की वजह से नहीं। जिनके नाम रखकर हम अपने आप को मुसलमान बता रहे हैं, वो मुसलमान होने से पहले भी उसी नाम वाले थे। इससे पता है चला कि मुसलमान नाम से पहचाना नहीं जाता, मुसलमान काम से पहचाना जाता है। उसके अखलाक और उसके खद्दो खाल से मालूम होता है। कोई मुसलमान जा रहा, उसको देखकर सलाम करना नहीं करना नहीं मालूम। हम तो टोपी वगैरह पहन के, वो करीब आकर हमारे हुल्ले को देखकर जब तक सलाम नहीं करता, हमें मालूम नहीं होता कि मुसलमान है या भेड़ है, चमार है। हमें शर्मिंदगी होती कि भाई ये मुसलमान था। सलाम में पहल करना अफजलियत है। मैं सलाम में पहले इसको मैं सलाम क्यों नहीं कर सका? क्योंकि ये मुझे मुसलमान दिखाई नहीं है। मुसलमान ये पहले तो ये चाहता ही नहीं है मुसलमान कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिसल देखूं, मैं आपका आइडियल बनकर देखूं। आज नौजवान मुसलमान ये चाहता है कि मैं पक्का एक्टर दिखूं, पक्का यहूदी दिखूं, ईसाई दिखूं, मुसलमान ना दिखूं, सहाबी के जैसा ना दिखूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जैसा। अगर लिबास में ही हम अपने आप को बदल ना सके, चेहरे पे ही ना बदल सके, अपना चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे के जैसा ना बना सके, अपने लिबास को आखाए दो जहां के लिबास के ऐसा बना ना सके, भाई दिल को कब बनाएंगे दोस्त? रूह को कब बनाएंगे? घर के माहौल को बनाएंगे? दोस्तों ये चीजें हैं हमारी आखिरत को बर्बाद करने वाली और दुनिया में बेसुकूनी का दरिया बनने वाली यही चीजें हैं। अगर आज भी मुसलमान अल्लाह की बारगाह से अपने इनामात को हासिल करना चाहे, मुसलमान अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करना चाहे, मुसलमान अपने मसाइब का हल तलाश करना चाहे, उसके लिए एक ही रास्ता है। छोड़े इन रास्तों को, तलाश करे नुकूशे कदम मुस्तफा को, आकाए दो जहां की सीरत और किरदार को तलाश करे। अल्लाह ने सिर्फ कामयाबी और नजात इसमें रखा है। कुरान करीम की एक और आयत करीमा तिलावत की गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ईमान वालो तुम हरगिज इन यहूदियों को, नसारा को, ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ। क्यों? ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, क्यों? बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है, आपस में ये एक दूसरे के दोस्त है। इस्राइल अमेरिका का दोस्त है, किसी और का दोस्त नहीं है। जितनों को फायदा पहुंचा रहा था वो ये समझ रही है हमारा दोस्त है। इधर ईसाई है, इधर यहूदी है। कुरान 1400 साल पहले कहकर गया ये दोनों आपस में हमेशा दोस्त रहेंगे। तुम इनसे दोस्ती करके कुछ हासिल नहीं करोगे। हालात को समझे, ऐसे दीवाने बन के जीने से कोई फायदा नहीं है। मैं बस अच्छा हूं, मेरे हद तक अच्छा हूं, ये कोई मुसलमानी नहीं है। अरे जानवर भी तो ऐसा नहीं है। हमारी जिंदगी का एक मकसद है, हमारे पैदा किए जाने का एक मकसद है। हमारा परवरदिगार हमसे चाहता क्या है, ये हासिल करे, इसको तलाश करे। तो दोस्तों अजल से ये मुसलमानों के दुश्मन थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये जरूरी है क्या भाई, ये कपड़े भी बदलना जरूरी है क्या, चेहरा भी बदल, इससे क्या होता? इससे हम कौन से अल्लाह के साथ मुखालफत कर दिए, ये ख्याल आता ना। अब सुनिए, बुखारी और मुस्लिम में हदीस पाक है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा को हिजरत करके तशरीफ लाए तो देखा कि 10 मुहर्रम को यहूदी रोजा रखते थे। रोजा इबादत है ना, फर्ज इबादत है, और इबादत में भी अफजल तरीन इबादत है, इसके बेशुमार फजाइल है। वो इबादत कर रहे हैं 10 मुहर्रम को। सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से दरियाफ्त फरमाया तो मालूम हुआ कि वो 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। हुजूर ने पूछा क्यों रखते हैं? यहूदी ने बताया कि अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम की तारीख को बनी इसराइल को यानी यहूदियों को फिरौन जैसे जालिम हुक्मरान से नजात अता की। फिरौन को गरक कर दिया। 10 मुहर्रम का दिन था। वो 300 साल से जायद अरसा उस फिरौन के जुल्म में पड़े हुए थे। उनको उस जालिमाना, उसके जाबिराना अंदाज से तौर तरीकों से अल्लाह ताला नजात दिया। तो वो 10 मुहर्रम की तारीख, इस खुशी में अल्लाह के बारगाह में शुक्राने के तौर पर रोजा रख रहे हैं।
और यहूदी इतनी देर से मैं कह रहा हूँ, यहूदी इंतहाई गलीज कौम है, ये अल्लाह के मग़ज़ूब है, अल्लाह का गज़ब हुआ, इतने देर से कह रहा हूँ ना मैं। अब इतने बदतरीन कौम का भी ये तरीका है कि अल्लाह के तरफ से कोई इनाम मिला तो शुक्राने में रोजा रखा जाता है। आज तक कभी कोई इनाम मिला तो हम रोजा रखे? अल्लाह के तरफ से कोई नेमत मिली है तो उसका शुक्र बजा लाना यहूदी जैसे बदतरीन कौम का भी शेवा था। अब अल्लाह की नेमत कभी मिली तो हम क्या करते? उसी दिन उसी वक्त उस नेमत के मिलने के दिन को अल्लाह के नामर्जियात में उस दिन को गुजारते। कोई नौकरी मिल गई, पार्टी करना है, या किसी भी तरह का पार्टी करना है, उस पार्टी में सारी बेहयाइयां और फिल्म देखना, गाने वगैरह लगाना, ये सारे हराम काम जमा कर देते। ये सारे हराम काम वाली पार्टी क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अल्लाह ने हमको नेमत दी। अल्लाह के नेमत का शुक्राना हम गानों के जरिए से, फिल्मों के जरिए से, बेहयाइयों के जरिए दे रहे हैं। कौन सी इंसानियत है? एक जानवर से भी गिर गया मुसलमान आज। तो खैर बात ये थी कि वो लोग रोजा रखते थे। हुजूर ने पूछा तो उन्होंने ये बताया, तो हुजूर ने फरमाया हम इससे ज्यादा हकदार तो हम हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम मेरे भाई है और उनको और इंसानियत को फायदा पहुंचाया, लिहाजा हमको तुमसे बढ़कर रोजा रखने का हक है। देखिए, नेमत तो उनको मिली, जुल्म से नजात तो उनको मिली, मगर हुजूर फरमा रहे हैं कि इस शुक्राने में हमको भी शामिल होना चाहिए। ये बताइए, दूसरे को फायदा मिले तो खुश होना, खुद उससे बढ़कर खुशी का इजहार करना, ये सुन्नत रसूल है, क्या अखलाक है आकाए दो जहां के। अगर किसी को फायदा हो गया, सबसे ज्यादा जलन पड़ोस को हो जाता। भाई को अच्छी नौकरी मिल गई, ये दूसरे भाई को दर्द शुरू हो जाता। बहन को अच्छी जगह शादी हो गई, दूसरे बहन को जलन शुरू हो गया। कोई मुसलमान हमारे रिलेटिव में है, उसको अच्छा फायदा हो गया, जलन शुरू हो जाता। क्या है ये? क्या ये दिल जो गैर के फायदे की वजह से तकलीफ में मुब्तला हो गया, क्या ये दिल अल्लाह तबारक व तआला के पास हम लेकर पेश हो सकते? क्या हम जन्नत में जा सकते इस गंदे दिल को लेकर? जहां सरकार दो आलम साहब ये फरमा रहे, उनको नेमत मिली तो शुक्राना हम भी अदा करेंगे। खैर ये वाकया तो इसलिए बयान करना नहीं था, ये वाकया इसलिए मैं बयान किया हूं, हुजूर ने फरमाया उससे ज्यादा हकदार हम हैं, लिहाजा हम भी रोजा रखेंगे। मगर सहाबा से फरमाया, अब ये मजमून इस टॉपिक से रिलेटेड चीज ये है कि यहूदी भी उस दिन रोजा रख रहे हैं और मुसलमान भी रोजा रख रहे हैं। हुजूर ने फरमाया खालिफुल यहूद, भाई यहूदियों की बराबरी हरगिज तुम नहीं कर सकते। किस चीज में? आज हम कपड़ों में, रहन सहन में, चेहरे मोहरे में यहूदियों की चाल इख्तियार करने से क्या होता समझते हैं ना? हुजूर फरमा रहे हैं रोजा अल्लाह के करीब होने का इंतहाई आला तरीन अमल है, मगर अगर वो रोजा जिस दिन हम रखते हैं उसी दिन अगर यहूदी भी रखते हैं, तब भी इस इबादत में भी उनकी बराबरी ना होने पाए, इसमें भी तुम उनसे अलग थलग नजर आओ। लिहाजा तुम 10 के साथ 9 मुहर्रम को ऐड कर लो, या 10 या 11 को रोजा रख लो, 2 रोजे रख लो, ताकि मालूम हो जाए कि हम इनकी तरह नहीं हैं। अरे इबादत में भी उनकी तरह जहां बंदा मुसलमान हुजूर का पसंद नहीं है, तो फिर किस चीज में हुजूर पसंद करेंगे? इबादत है, इबादत में भी वो लोग सिर्फ 10 का रोजा रख रहे हैं, तो तुम भी 10 का रोजा रखोगे तो उन जैसे हो जाओगे। इबादत करने में भी उनके जैसे तुम न बनो, ये सरकार दो आलम का मंशा है। दोस्तों, हमारी जिंदगी जो तबाह हो गई है, हम दहलीज रसूल को छोड़ दिए। अब ये उनका बनाया हुआ मंसूबा है, प्रैक्टिकल उन्होंने चाहा यही था कि मुसलमानों को अगर हराना है, इनको दुनिया में जलील और रुस्वा करना है, तो इनके अंदर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को निकाल दो। इनके अंदर कुछ भी कर लो, उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर सकती। ये एक मुर्दा लाश की तरह है ये कौम। इसीलिए अल्लामा इकबाल के शेर पर बात खत्म कर रहा हूं। बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह ने आपको उस उम्मत की फिक्र दी और उम्मत में पैदा होने वाले मसाइल का हल भी एक शेर में बयान कर दिया। आप फरमाते हैं, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्र अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो।
रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। यहूदी क्या कह रहा है, इनके अंदर जो रूह मोहम्मद है उसको निकाल दो। वो क्या है, वो सुन्नत रसूल है, वो अखलाक रसूल है, वो किरदार रसूल है। अरे कम से कम चलो तो ऐसे दिखो कि ये गुलाम आ रहा है मोहम्मद मुस्तफा का। कोई कुछ भी समझ ले, आसमान वाला देखकर फख्र करेगा और फरिश्तों को इसकी मदद के लिए उतार देगा। आ रहा है, देखो मेरे महबूब की अदाओं को लेकर आ रहा है, इसकी मदद करेगा। मोहतरम, ये दुनिया मुख्तसर सी है। दुश्मन के साजिश को समझे और अपनी आखिरत को बनाए। आकाए दो जहां की सुन्नतों के बगैर किसी और चाल में, तरीके में कोई कामयाबी नहीं है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जो कुछ कहा गया आगे अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पे रहम करम फरमा, तेरे महबूब का सदका अता फरमा, तेरे महबूब के महबूबीन का सदका अता फरमा, हमारा खातिमा बिल खैर फरमा, हमें जो परेशान हाल है उनके परेशानी को दूर फरमा, तेरे और तेरे महबूब के मंशा वाली जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमा। मुझे वास्ता है अभी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।